آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. پایہ حقارت سے نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے. آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں. میں آج پھر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں. بانی پی ٹی آئی مشکل میں ہیں تو بات کریں، معاملات طے کریں. وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش. آئیں ملک کو آگے لے کر چلیں، نہیں چاہتے جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی وہ آپ بھگتیں. ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں. تلخیاں اس حد تک پہنچنے کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیراعظم نے 2018 کے انتخابات کو پھر جھرلو الیکشن قرار دے دیا. اس سے پہلے وزیراعظم نے عمر ایوب، اسد کیسر اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا. جناب اسپیکر، یہاں پہ فارم 47 کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی ہے. میں یہاں پہ واضح کر دوں، انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے. بات تب ہوگی. پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں پھر بات ہوگی، عمر ایوب نے شرط رکھ دی. قومی اسمبلی میں وزیراعظم کو جواب میں کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے. یاسمین راشد، محمود الرشید اور حسان نیازی سے زیادتی ہوئی. مفاہمت تب ہوگی جب حکومت زیادتی کا احساس کرے گی. مولانا فضل الرحمان کے ایوان میں بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت. اسٹیبلشمنٹ کا موقف واضح نہیں، پنگا نہ لیں. لگتا ہے آپریشن کے ذریعے چین کی بات پوری کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی بجٹ میں ٹیکسز کی بھی مخالفت. کہا بجٹ سے ملک کا کباڑا ہو گیا. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں، اس وقت اقلیت حکومت کر رہی ہے. فیصل وارڈا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی. توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا. کہتے ہیں پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا. عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. مصطفیٰ کمال گزشتہ سماعت پر غیر مشروط معافی مانگ چکے. فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 28 جون کو ہوگی. امریکی کانگریس کا پاکستانی الیکشن کو منصفانہ ماننے سے انکار. 8 فروری کے الیکشن کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. ایوان نمائندگان میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے قرارداد منظور. مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے. قرارداد میں عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کی مذمت. امریکی حکومت اس نان بائنڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پابند نہیں. حکومت نے امریکی قرارداد فوج کے خلاف پروپیگنڈا قرار دے دی. حنیف عباسی بولے امریکی قرارداد صہیونی سازش ہے. قرارداد کی لابنگ کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے. گولڈ سمتھ کے تانے بانے پی ٹی آئی کے بانی سے ملتے ہیں. سازش مکمل نہیں ہونے دیں گے. دفتر خارجہ کے امریکی نمائندگان کی قرارداد پر تنقید. ترجمان کے مطابق ایسی قراردادیں نہ تعمیری ہیں اور نہ ہی بامقصد. پاکستان آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر مکمل عمل کرتا ہے. بلوچستان سے ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کا سربراہ گرفتار. را اور بی ایل اے سے متعلق اہم انکشافات. دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اتحاد کا سب سے بڑا نشانہ سی پیک ہے. دہشت گردی کے لیے پیسہ بھارتی ایجنسی را فراہم کرتی ہے. مولوی نور ولی سمیت ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں ہے. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے بتایا کہ نصر اللہ کو ایک مشکل آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا. دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا درخواستوں پر فیصلہ سنائیں گے.
ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये वजारतों से मुंसलिक नहीं है, ये वजारतें रही ना रही, ये गवर्नमेंटें रही ना रही, जो मंशात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अगर इंडिपेंडेंट हैसियत से भी करना पड़ा जरूर करेंगे, क्योंकि इस लानत को मुआशरे से हमें खत्म करना है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे इस वक्त घर में जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल एंड बिकॉज ऑफ दिस आइस। बड़े बड़े घरों के बच्चे आइस का नशा करते हैं। आइस के आदी बच्चे घरों में जंजीरों से बंधे हैं। वजारत रहे ना रहे, मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। शर्जील मेमन का असम्बली के ऐवान से दो टोक पैगाम। कहा, तमाम हलकों में मनशियात चल रही है, MPAs हुकूमत हैं, एक्शन लें। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया। कोई भी गाड़ी अब बगैर रजिस्ट्रेशन रोड पर नहीं निकलेगी। होशियार, खबरदार, बादल बरसने को तैयार। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 1 जुलाई तक बारिशें होंगी। कराची में बादलों की एंट्री हो गई। डेरा बुगटी और सुई में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। नदी नालों से तजावुजात और रुकावटें हटाने की हिदायत। मरीम नवाज का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। कहा, दुनिया में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है तो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों नहीं चलता। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। जहां भी सैलाब का खतरा हो बरवक्त इक़दाम किए जाएं। पानी को तरसते कराची वालों पर नया टैक्स। जमीन से पानी निकालने पर भी बिल आएगा। मीटर लगाकर बिलों की वसूली होगी। सनतें, होटल, रेस्टोरेंट, तालीमी इदारे, सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स सब बिल भरेंगे। मेयर कराची ने पानी पर टैक्स से सालाना 1 अरब रुपए आमदन की उम्मीद लगा ली। घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। मामूल के डिमांड नोटिस की फीस 18,000 मुकर्रर करने की सिफारिश। अर्जेंट कनेक्शन की फीस 80,000 रखने की तजावीज़। LNG टैरिफ की बुनियाद पर घरेलू कनेक्शन फराहम किया जा सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान कनेक्शंस देने का अमल शुरू किया जा सकेगा। हुकूमत का काम ये नहीं होना चाहिए था कि जो टैक्स नहीं देता उसको टैक्स देने वाला बनाए, ना कि ये कि जो टैक्स दे रहा है उसी पे उन लोगों का भी लोड डाल दें कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो 95% वो जो तबका है जो कि टैक्स नेट में ही नहीं है, वो पहले 15% भी नहीं दे रहा था, अब वो 18% भी नहीं देगा। तो होगा क्या कि जो ये 15% पहले देने वाला था, जब ये इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी तो ये बिजनेसेस भी बंद होना शुरू हो रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स लग गया, इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा, कारोबार बंद होंगे। MKM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हुकूमत समझती है कर्ज टैक्स लगाकर उतारा जाएगा। फारूक सत्तार बोले, टैक्स लेने के लिए लोगों को सहूलियात देनी होंगी। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान ने 6,101 अरब रुपए के 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वजारत दिफा के 2,149 अरब 82 करोड़ रुपए के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। आबी वसाइल डिवीजन के 263 अरब 48 करोड़ रुपए के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। 5,446 अरब का फाइनेंस बिल मंजूर हुआ। 41 मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। जिना हाउस लाहौर पर हमले समेत 7 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने PTI रहनुमा शाह महमूद को गुनहगार करार दे दिया। शाह महमूद को JIT ने मुतज़ाद बयानात शवाहिद की बिना पर गुनहगार करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को मुश्तइल किया। पोली फोरेंसिक टेस्ट ने भी शाह महमूद के झूठ की निशानदही की।
जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को अमरीका की नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में धकेला गया। मगरबी सरहद गैर महफूज, मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर भी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की थर कोल की दीगर इलाकों तक रसाई की हिदायत। गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने का पाबंद करवाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के जरिए ऑर्डिनेंस 2014 को दोबारा फाल कर दिया जाएगा। वजारत तालीम की जानिब से प्राइवेट इदारों का सर्वे करवाया जाएगा। इंसदाद मनशियात का आलमी दिन। पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का मनशियात की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात करने का अज़्म। कहा, मनशियात के इस्तेमाल के तबाहकुन असरात के पेश नज़र इस जंग को कौमी तरजीह बनाना नागुज़ीर है। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग ले आया। कीनिया के सदर ने मालियाती बिल पर दस्तखत नहीं किए। विलियम रूटो ने मालियाती बिल को तरामीम के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया गया था। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 23 अफराद हलाक हुए। दरख्त लगाएं, मौसमियाती तब्दीलियों को शिकस्त दें। ज़राई माहिरीन का फलदार दरख्त लगाने का मशवरा। जनूबी पंजाब में बेरी, कीकर, खजूर, आम के दरख्त लगाना ज़्यादा कारआमद। वस्ती पंजाब में शीशम, जामन, शहतूत, पीपल के दरख्त लगाए जाएं। शिमाली पंजाब में कचनार, अखरोट, बादाम, देवदर के दरख्त लगाना मौजू है। कराची में अमलतास, नीम, जामन, पीपल, नारियल और अशोका लगाया जाए। बलूचिस्तान में करक, फलाई, कीर, चलगोज़ा, पाइन और ऑलिव। केपी में शीशम, देवदर, पॉपुलर, कीकर, चिनार और पाइन ट्री लगाया जाए।